So we are talking about operational case study exam for February 2026. The November exam is already over. The exam scheduling window open for November exam on 23rd April 2025. The exam window closed for November exam on 21st October. The pre-seen material for November and February was released on 19th September 2025. And November exam is over. The results published will be published for November exam on 8th of January 2026. The interim report post exam material will be released on 23rd January. And then certificate will be dispatched to those who passed and all that. Then comes the February 2026 table. Exam scheduling window already opened. It is already opened on 23rd of July 2025. The exam scheduling window will remain open till 20th January. अभी से मोटा मोटी एक महीने बाद 1 मंथ के अंदर एग्जाम आप बुक कर सकते हैं. प्री सीन मटेरियल टू स्टूडेंट्स, सेम मटेरियल है नवंबर वाला, which is released and which will be used in the class, and this was issued by the institute on 19 September. The exam date is 4th, 5th and 6th February. The result will come on 26th March. You will be giving exam on any day 4th, 5th or 6th February. A result will be published on 26th March. And the November and February exam, all the papers, all the variants, all the model answers, Institute will publish on 10th April. After 26th March, 10th April, all the model answers, all the question papers which were asked in November and February exam will be published by the Institute on 10th of April. And the certificate dispatch, it's saying as 18th of June. Then there is schedule for me and all that is also there. We are concerned with this schedule. हम लोग को ये वाले शेड्यूल से ही मतलब है. Or we are talking about operational level. So the highlight date, we can say 4th to 6th Feb. Sitting will be held on this pre-seen material for exam released on 19th September 25. Exam entry opens already. Last date to book exam is 20th Jan. Result will be published on 26th March. March 2026. You will give exam in February. Result will be coming on 26th March. And all the variants, that is the question paper which are asked in November and February, they will be publishing all the model answers and everything on 10th April 2026. Just that I'm copying this.
This is, you can say, important dates for our relevant thing, that is February exam. And one more thing. Do anybody know what is the date to submit the assignments? Exact date मालूम है? आदित्य, जैनाम और एनीबडी? जो असाइनमेंट्स E1 P1 F1 का सबमिट करना है to book the exam, do you remember the date exactly? Because it will be there in your system. जो आपको सीमा इंस्टीट्यूट से सिस्टम मिला है, जहां पर आप आईडी पासवर्ड यूज करके असाइनमेंट सॉल्व करते हो, देयर it must be written the date, the last date to submit those assignments. So I think 6 weeks before the exam. 6 days before the exam. You were sure, or you were saying haphazard? No, 6 weeks. It is written there कि 6 days before the exam, है ना? 6 weeks. 6 weeks or 6 weeks before the exam. So Yeah. exam is on 4th of, say that is the first week. 4 week, that means January. फिर तो दिसंबर के अंदर सबमिट करना है? The submission Yeah. for the assignments need to be done by, say, end of December, है ना? ठीक है. So assignment of OTQs or E1 P1 F1 to be submitted 6 weeks, but dates must be written 6 weeks before the exam. Assignments for OTQs need to be submitted 6 weeks before the exam. Anybody can say exact date? Date लिखा होगा, सर्च मार सकते हैं यार. Hmm, इसको क्या होगा? So you are saying assignment submission last date for giving a study exam in Feb 2026. मैं कल बता दूंगा आप लोग को. ज्वाइन द क्लास ऑफ 26 CGMA एग्जाम मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फिनेंस CGMA स्टडी रिसोर्स, द क्रूशल नेचर ऑफ CGMA पावर स्किल्स.
It will take time, no point going into this. Whatever Rutvi is saying, I am accepting, but I will say the exact date by asking the SEMA Institute, because today they will not pick up Sunday. They are not available. So I will ask them tomorrow and I will tell exactly what is the date for giving the assignment submission. As I said so many times in the groups and in the classes again and again, I am repeating the same thing. If you are already registered with the SEMA Institute, very well. If you are not registered, then you need to share your 12th mark sheet, your address ID proof, and a letter from the college where you are studying. A bona fide certificate that you are studying in the college and your college will finish in 2026, 27, 28, whenever. That's just a letter on the letterhead of the college, university, and 12th mark sheet and address ID proof. Once you give us, we will give to SEMA Institute. SEMA Institute will register you and you need to make the payment to SEMA Institute 1204 pound. Once you share the letter, then we add you in a group, WhatsApp group where SEMA Institute persons are there. And then the direct communication between you and the SEMA Institute starts and they help you to register with the institute. Presently, up till 31st December, the fees is 1204 pound. They are going to increase the fees. We know the fees for other levels. But for your level, what is the increment in the fees? They said, I forgot. So there is increment in the fees as compared to 1204 pound. Some increment is there that the student need to pay if they will register from 1st January. Normally, all US, UK remain closed at the end of the year for 14, 15 days. Like we have in India, different types of festival, Diwali, Durga Puja, this, that, blah, blah. They have one festival, mainly the Christmas, end of the year. And approximately 15 days, nobody works. That is their holiday time. So the institutes are closed. Staff in UK are not working. Maybe Indian staff are working. We can communicate with them. But ultimately, the communication relating to payment and everything need to be done with UK only. So maybe somebody who placed the document with the SEMA Institute 1 or 2 days earlier, they are being said by the SEMA Institute that registration will be done in January. I will talk to them relating to this also. Can the registration be done now so that the fees can be saved? If the registration is done very well, if not done, then do it ASAP so that at least you can prepare and give the exam in February. Once your registration is done, you will be getting the assignments from the institute. Those are not, there is no study required as such. Multiple choice questions. You will not study anything, just one question given, 4 answer given, ABCD, you select anyone. If it is wrong, system will be saying solve it again. So you need to solve in 1 or 2 days all those assignments, because still if suppose 5, 10 days are there, you submit it today only. If you are serious and if you don't think that assignment and study together, you just focus on solving the assignments so that you can book exam. Because if by chance suppose you book exam and it is taking and you have not solved the assignments, you are not allowed to give exam on the day of exam, your exam will be cancelled. That is specifically written in the exam booking platform. When you book the exam, it is taking you through. But it is saying there that if your assignments are not solved and you are booking the exam, your exam is not treated as booked. For exam booking, you don't need to pay any money because 1204 pound include everything. You can straight away book the exam from the platform which they have given. There is a tab, book OCS exam. You click and you proceed. The exam can be given by sitting in home. The exam can be given in exam center, the way you feel comfortable. Both have pros and cons. If you are sitting in home giving the exam, you have your own environment, own computer, laptop, own keyboard and everything on. That gives us a better feeling. But if you go in the exam center, the computer, typing board, keyboard and all that are new one. So generally the student complains, sir वो चल नहीं रहा था. ऐसा कुछ होता नहीं है वैसे.
It's a new one. For that reason, you don't have the habit. घर पे है तो अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, लोड शेडिंग, इंटरनेट वगैरह, तो आपका एग्जाम कैंसिल हो जाता है। वापस होगा, पैसे नहीं लगेंगे, लेकिन एग्जाम तो कैंसिल हो गया ना। इफ यू आर इन द एग्जाम सेंटर, दैट burden you don't need to take. You will be going there, giving the exam, load shedding internet, they will take care. So सब अपना अपना घाटा, एडवांटेज डिसएडवांटेज है, डू प्रॉस कॉस्ट एनालिसिस, एंड वट एवर यू फील गुड यू शुड बी डूइंग, बट बोथ द ऑप्शंस आर देयर. The exam centers are there all over India and all over the world, and you will be able to give exam in the exam center which is nearest to you. When you book the exam, it will be showing the locations where you are and what is the nearest location of the exam center. It will be automatically showing. You don't need to ask anybody. And if you want to give exam remote basis sitting in home, then there is no center required. So my advice, if somebody has completed the assignments, very well. Not completed, complete today. Don't think about Monday. And those who are not yet registered, share the documents. Let's see what we can do. I will talk to them tomorrow relating to some of the students. Those registration are still not complete, directly with Neelam, and will communicate to all of you in the group that what they have said. Because those who are not registered, whether they will be eligible for exam or not, there are 2-3 things, problems are there. First thing, you are not registered, you have not solved the assignments. And as Rutvi was saying, 6 weeks before the exam, then in that case, it is 1 or 2 days only. So paying the money, registering, solving the assignments, then eligible is creating a question. But still, I will try my level best. And those who are already registered, if they have not solved the assignments, they are wasting their time, because you can't appear for February exam without solving the assignments. Then comes anybody in the class other than Jainam. जयनाम को छोड़कर कोई भी, ये जो सीमा का केस स्टडी एग्जाम है, इसका स्ट्रक्चर क्या है? व्हाट इज द स्ट्रक्चर, हाउ द एग्जाम्स आर हेल्ड, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन कम, कितने नंबर का पेपर होता है, कितना पास मार्क्स है? कोई भी जन ये बता सकता है? इन प्लेस ऑफ माई सेइंग दिस अगेन, एनीबडी इन द क्लास हु कैन कम्युनिकेट प्रॉपरली टू ऑल द स्टूडेंट्स दैट व्हाट इज द एग्जाम स्ट्रक्चर फॉर ऑपरेशनल केस स्टडी, पेपर कितना होता है, कैसे आता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने नंबर का पेपर होता है, कितना पास मार्क्स है, एंड ऑल दैट. एनीबडी? अभिषेक कुमार, आदित्य, काव्या, ऋत्वी, सृजिता. सृजिता नहीं बोलेगी, सॉरी, सृजिता ऑलरेडी नो, सृजिता को नहीं बोलना है. क्या भाई? एनीबडी? आदित्य जी, क्या है एग्जाम का? Yes, sir. बोलिए सर. So, exam structure, as much as I know, then the SEMA Institute, they will give about 2 months earlier the present material that we have already sent. हाँ. And the present material contains all the, there is a frictional company in a frictional country with a frictional something unlike for here we have $R for frictional company they will be given, they will give their balance sheet, what they do, what they does, from where they locate, when they started, who are the founders, etc. How the customer, every whole details, everything. About 33 pages I saw yesterday there is. And on the basis, the present material, on the basis of that, on the exam day, on the software, when we go, they will be given a task and subtask. Every task, there will be about 1, 2 to 3 subtasks, which will be divided into percentage. Every total will be 100 marks, but on the basis of 3 days we have got exam. Then some day there will be easier questions. Some day maybe someone can get harder question. Because of that, they will wait to put the weight, because of which it will be 150 marks total, out of which 80 marks will be the pass marks. Then out of 150 marks, when you go to give the exam, the questions, and every question will have like 2 subtasks or 3 subtasks, and every subtask will be percentage allotted to them. Like for example, this subtask A, question number 1, subtask A is, for example, question number 1 is like 10 marks, then subtask A will be 40%, subtask B will be 60%. It means 6 marks will be for subtask B, 4 marks will be subtask A, and time allotted will be given 180 total, 3 hours. For that, every question will be 45 minutes every question. And subtask also will be like 40% of 45 minutes, how much we will be spending on each questions, something like that, sir. थोड़ा सा और
माने ठीक है, यू आर सेइंग एवरीथिंग करेक्ट, बट सम पॉलिसिंग रिक्वायर्ड है, थोड़ा सा पॉलिसी इसमें और चाहिए। तो एक एग्जांपल लेते हैं। Suppose this is a type of question paper which will be coming in the exam. Not Korean. So you can say that suppose you are in the exam hall and you are getting a question paper on screen. Just now when Aditya was saying that there are different sections or tasks in the exam. Normally in SEMA operational case study, there are 4 tasks. And for each task, there are different requirements. Suppose in one task, there are AB2 requirements. Second task, there are ABC3 requirements. Third task, 2 requirements. Fourth task, again 2 requirements. So 2 to 3 requirements in every task. And for each task, the time is fixed, 45 minutes each. In this first task, 45 minutes, you need to answer both these questions. In this second task, 45 minutes, you need to answer all 3 questions. In total, 3 questions, 45 minutes. In total, 2 questions, 45 minutes. Whatever the subtasks, sub questions are there, they need to be answered within 25 minutes. Some information about the PV factor and all that given, generally not required in the exam, but these details they give. Then suppose this is the first task. In the first task, there is a male or
there is some write-up given in the exam hall directly, which is called unseen portion. Pre-seen portion, which is already released before the exam, that we all can get, as I said yesterday, and it is freely available on the institute website. That is a pre-seen material. But unseen material, on the day of exam, for every task, you will get some story. Generally, these stories are mailed from your senior in the organization. You are in the organization as a finance officer. You will be getting the mail or queries or some issues from the finance director, from finance manager, from production director, from marketing director, from HR director, anybody. They are communicating with you because in the exam, you are not an examinee. You are the finance officer of the company. And that unseen information includes some write-up. Some write-up and some requirement. The requirements are divided into 60-40, 50-50, 70-30, or maybe 3 requirements. These requirements you need to answer. But before answering these requirements, based on these requirements, there is some write-up, some reference material, some discussion with somebody, some newspaper article, something. Some information are given which is called unseen portion. So in the exam, when you are there, and suppose you are writing the answer for this, first of all, you need to read this. आप इसको read करोगे, आप इसका reference material read करोगे, and then here तो it is starting second question. But in the exam, after this, there will be word file where you can type your answers. You need to read this entire thing, the 2-page, 3-page, whatever detail they have given, and you need to answer these requirements in 45 minutes. So I always say that in 45 minutes, you are not getting entire 45 minutes to write the answer. Out of 45 minutes, I generally assume 7 to 10 minutes will be going in reading, understanding the requirement, planning the answer. 7 to 10 minutes. 7 minutes each, according to me, is the least. 10 minutes is the max you can give. Say we are giving maximum 10 minutes in reading, planning and everything. Planning means you can do some rough write-up. आपको प्लान करने के टाइम पे कुछ आंसर्स लिखना है, मतलब इट इज नॉट फाइनल आंसर, बट वो आंसर आप लिख रहे हैं. जब आप लिख रहे हैं, ये फाइनल नहीं है, आप मन में कुछ आ रहा है पढ़ते वक्त. While reading something, you are thinking something to write. आप राइट कर सकते हैं, करना भी चाहिए. Which is you can see some rough write-up you are building. मान लीजिए ऐसा बोल रहे, recommend with reasons the factors that the board should consider when setting the price of reset full service plan. Recommend with reasons the factors that the board should consider when setting the price of reset full service plan. I am not going into discussing this pre-scene. मान लीजिए आपने ये पढ़ा, you have read this, and at the same time you are reading the reference material also. और आपको कोई मन में ख्याल आ रहा है कि आप उसको माने you will build up your answer along those lines. These are the points, not that the final points. कुछ मन में आ रहा है, maybe competitive pricing. आप ये सोच रहे मैं इस पॉइंट को डील करूंगा while explaining, करूंगा या करूंगी, while explaining this pricing for the service plan, or you are thinking that I will explain pricing based on cost of the product or services. या आपको बोलना है pricing based on market characteristics. This is just, I am not saying this is the answer for this question. I am saying that if I am in the exam hall, how I will write the answer, how I will think, how I will proceed. तो भैया पहले हम रीड करेंगे. I will read the requirement, I will read the scenario. While reading, I am thinking something to write, which is not final. I will elaborate this.
बिकॉज जस्ट गिविंग द बुलेट पॉइंट्स इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनी मार्क्स। बुलेट पॉइंट से कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन आप इसको इलेबोरेट करना चाहते हैं, पढ़ते वक्त आपके ख्याल कुछ आ रहे हैं, आप उसको लिखते जाइए आंसर सीट में नीचे, जैसे कि सम राइट अप यू आर रेडी व्हेन यू राइट द आंसर। नॉर्मली मैं होता तो मैं ऐसा करता, while reading the stuff I will be making some of my points jot down so that I can elaborate them later when I will be writing the full fledged answers। यानी कि ये रफ राइट अप, रफ मतलब मैं इसी के आगे इसको बढ़ाऊंगा आगे, आई विल फिनिश इट अप। नॉर्मली इफ आई एम टेकिंग 45 मिनट्स में से 10 मिनट्स इन रीडिंग, इन अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट, इन रीडिंग द रेफरेंस मटेरियल, इन मेकिंग सम रफ राइट अप, 10 मिनट गया। तो 45 मिनट्स में से 35 मिनट्स लेफ्ट। आउट ऑफ 35 मिनट्स 60% टाइम आई शुड बी गिविंग टू दिस, 40% टाइम आई शुड बी गिविंग टू दिस। Whatever the writing time, that should be allocated as per the percentage. So 35 into 60% will be around 21 minutes. And then this will be around 14 minutes. अब आप इसमें 20 के बदले 22 मिनट्स ले रहे हैं, चलेगा। लेकिन आप इसमें 20 के बदले 30 मिनट्स ले रहे हैं, तो आप इसको 5 मिनट्स ही लिखोगे। अब इसमें अगर क्वेश्चन 60% से दिस 60% टाइम ऑल्सो, 60% मार्क्स ऑल्सो। जस्ट नाउ आदित्य वाज सेइंग 10 मार्क्स, 10 मार्क्स नहीं है, ये पूरा क्वेश्चन टोटल पेपर 150 मार्क्स, 150 each of what, 150 divided by 4, you can say 37.5 marks। 37.5 का 60% मार्क्स each for this question, 37.5 का 40% मार्क्स each for this question। So this 60% each for time allocation also, and this each for the marks allocation also। So if 37.5 का 60% is say 23 मार्क्स, आपको इसमें मैक्सिमम 23 में ही मार्क्स मिलेगा ना, बैलेंस तो 14-15 मार्क्स इसके ऊपर है। आपने इसका आंसर ही नहीं लिखा। आउट ऑफ 23 यू कांट स्कोर 23। नॉर्मली द स्टूडेंट्स, गुड स्टूडेंट्स आर गेटिंग 60 to 70% मार्क्स, दैट्स मैक्सिमम। जो भी आप आंसर लिख रहे हैं 60 to 70% मार्क्स से ज्यादा नहीं मिलेगा। तो इफ फॉर 23 marks you are getting 60-70%, say you have written very well, you are getting say around 15 marks, लेकिन आपने इसका आंसर दिया ही नहीं क्योंकि आपके पास समय ही नहीं था। तो इन टोटल 37.5 में 15 मार्क्स ही आ रहा है। यू स्कोर्ड वेरी वेल इन द फर्स्ट पार्ट, बट दैट इज नॉट लीडिंग यू टू पास द एग्जाम, बिकॉज आपका टोटल 37.5 में 15 मार्क्स है क्योंकि आपने दूसरा वाला आंसर ठीक से लिखा ही नहीं। यू डिडेंट हैव द टाइम, यू डू नॉट डिवोटेड टाइम टू दिस, आप इसी में रह गए, लिखते रह गए, समय नहीं मिला, तो आप अल्टीमेटली फिर पास नहीं हो सकते। मतलब इट इज वेरी एसेंशियल दैट कि जो डिफरेंट पार्ट्स है आप हर पार्ट्स के अंदर प्रॉपर टाइम एलोकेट करें। इफ यू डोंट एलोकेट प्रॉपर टाइम, सम ऑफ द पार्ट्स विल बी वेरी बैड एंड इट विल अफेक्ट योर आउटकम इन द एग्जाम। अब यहाँ 3 पार्ट है, सोचिए आपको अभी तो देयर इज नो एग्जाम, तो आपका कोई टेंशन नहीं है। एग्जाम में टेंशन बहुत होता है कि आउट ऑफ 35 मिनट्स 40%, 12 मिनट मेरे को यहां मिलने वाला है, 30%, 10 मिनट यहां मिलने वाला है, 10 मिनट, 12, 10, 10, थोड़ा सा 1-2 मिनट इधर उधर। यू कैन टेक 1 or 2 मिनट्स हियर एंड देयर, बट यू कांट टेक मोर देन दैट, अदरवाइज आप तीनों का आंसर कवर कैसे करोगे? एंड इफ यू आर नॉट कवरिंग ऑल द 3 आंसर्स यू कांट पास द एग्जाम। सिंपल, आप पास नहीं होगे एग्जाम में। और जो टाइम एलोकेशन आपने किया है, पहले आपने रीड किया, आपने तीनों के बारे में आंसर प्लान किया, वो तो कॉमन टाइम था, 10 मिनट्स यू हैव गिवन कॉमन टाइम। नाउ द राइटिंग टाइम यू आर एलोकेटिंग बिटवीन द 3 बेस्ड ऑन द मार्क्स, बेस्ड ऑन द परसेंटेज। और ऐसा सीमा इंस्टीट्यूट बोलता है कि आपका टाइपिंग स्पीड while writing the answer, your typing speed should be 15 to 20 words per minute। How many words is this? This is not the full line। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 to 20 words we generally say approximately 1.5 line। यानी कि वो लोग ऐसा बोल रहे हैं आपका टाइपिंग स्पीड होना चाहिए 1 मिनट में 1.5 लाइन टाइप करने का, 1 मिनट में 1.5 लाइन।
यानी कि इफ यू आर गिविंग 10 मिनट्स टू एन आंसर, जैसे मैंने अभी बोला कि दिस सेकेंड पार्ट यू आर गोइंग टू गिव अराउंड 10 मिनट्स, तो आपका लेंथ ऑफ द आंसर कितना होना चाहिए? 15 लाइन्स. इफ यू आर राइटिंग इन प्लेस ऑफ 15, 17, 18, वेरी वेल. बट इफ यू आर राइटिंग 13, 14, फिर भी चलेगा. बट इफ यू आर राइटिंग 10 मिनट्स, 10 लाइन, इट इज अ शॉर्ट आंसर. In a short answer, it will be difficult to pass the exam because you are not giving the proper outcome for the examiner to give you marks. आपको ये सोचना है जितना भी देर आपको देना है 1.5 लाइन उतनी हर एक मिनट में आपको लिखना पड़ेगा. आप ज्यादा लिख सकते हैं, बढ़िया. ज्यादा मतलब मैं ये भी नहीं बोल रहा 10 मिनट्स में यू नीड टू राइट 30 लाइन्स, नॉट रिक्वायर्ड. लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया है, बट नॉट रिक्वायर्ड. दे आर कंसर्न विद द क्वालिटी, नॉट द क्वांटिटी. जो क्वेश्चन में पूछा गया है, एग्जैक्टली व्हाट दे आर आस्किंग, हाउ यू कैन बिल्ट अप द आंसर विच कवर्स द रिक्वायरमेंट विच दे आर आस्किंग. आप वो आंसर का रिक्वायरमेंट को प्रॉपरली लिखोगे, नॉट इन बुलेट पॉइंट्स लाइक दिस. ऐसे नहीं चलेगा 1 लाइन 2 लाइन. दिस इज रॉन्ग प्रेजेंटेशन. When you refer their model answers, all are written in paragraph format. Suppose for a 10 line, a 15 line answer, you can have 3 paragraph. Each paragraph 5 line, 5 line, 5 line each. For every paragraph you can have a subheading. No compulsion. पैराग्राफ का सब हेडिंग बन सकते हैं, दीजिए. नहीं बन सकते, कोई बात नहीं. बट पैराग्राफ वाइज आंसर लिखना है. When you are explaining something, you explain in very detail, using the pre-seen material, using the unseen portion, and using the basic understanding relating to that area. Competitive pricing. मान लीजिए क्या लिखेंगे? Suppose whatever they have written the detail, in that detail they have given about some information of a competitor or some information of a competitor in your pre-seen material. कुछ है, जैसे हम लोग का जो अभी pre-seen material है स्काइस, उसके अंदर they have not named the competitor properly. और मान लीजिए आपको नाम है, but they have mentioned that big players are there and the big players are enjoying economies of scale. They are selling their skies all over the world. They are producing in bulk. They are getting lower cost being incurred because of the economies of scale. So competitors are able to offer the product at a lower price. आप कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग का बात समझा रहे हैं. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट द अदर पर्सन डोंट नो एनीथिंग. आपको उसको इस तरह से समझाना है कि आपकी बात से क्वेश्चन का आंसर भी होए और अगले आदमी को समझ में आए. कम्युनिकेशन इज द की. हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग इन योर आंसर, that is going to give you marks. And that communication is not possible by bullet points or by writing one sentence. एक बात के बारे में अच्छे से 5-6 लाइन बढ़िया से लिखना है. The English language grammar spelling mistake not an issue. They have written on the institute website. I am not going there. It is written grammar or spelling mistake ka there is no penalty. But whatever you are writing, if I am not understanding, I cannot give you marks. And now there is no question of good or bad handwriting because it is typed thing. तो bad और good handwriting का बात नहीं. जो भी आप लिख रहे हैं वो मेरे को समझ में आना चाहिए. If I am understanding, I will give you marks. If I am not understanding, I cannot give you marks. मैं आपको नंबर नहीं दे सकता. स्पेलिंग ग्रामर मिस्टेक होएगी, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं. Because we are not writing a poetry or literature. We are not English man. We are just basic understanding of English we have, and that basic understanding we can communicate to others. That's the focus of the exam. When the examiner, like suppose I am the examiner, I will give you marks out of 100. Each question I will assume 25 marks. मैं आपको 100 नंबर में नंबर दूंगा. वो इंस्टीट्यूट आपको अनाउंस करेगा आउट ऑफ 150. सपोज आई हैव गिवन यू आउट ऑफ 100 60 मार्क्स, तो इंस्टीट्यूट आपको देगा 90. वो उसको 100 में से 60 के बदले 150 में से 90 बना देते. सॉफ्टवेयर ही बना देता है, किसी को बनाना नहीं पड़ता है. सो इफ यू आर अनाउंस दैट यू आर allotted 90 marks, you will pass the exam because out of 150, 80 is the pass marks. और ये जो एग्जाम है, एक बात समझ लेना है, it is not a theory paper, it is not an accounting paper, it is not a costing paper, it is not a enterprise paper. ना तो ये थ्योरी है,
ना ये कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, कोई अकाउंटिंग कॉस्टिंग का पेपर है। ये क्या है? इट्स अ बिजनेस रियलिटी। जब केस स्टडी पढ़ रहे हैं, आपको टेक्निकल ज्ञान के पीछे नहीं भागना है कि मेरे को इसका जर्नल एंट्री नहीं आता है, मेरे को इसका क्या, वो नहीं काम है। बिकॉज एग्जाम वो नहीं है। यू डोंट नीड टू बी टेक्निकली परफेक्ट to give the operational case study exam or to pass the operational case study exam. It's a business case study. आपको एक इंडस्ट्री, आपको एक कंपनी, उसके बिजनेस, उसके मॉडल, उसका तरीका, उसके कॉम्पिटिटर, उसका फिनेंशियल्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल, आपको एक इंडस्ट्री के बारे में ज्ञान दिया गया है। वो इंडस्ट्री आज से आपको सोचना है, आप उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आप एग्जाम नहीं दे रहे हैं। यू हैव बीन हायर्ड इन दैट इंडस्ट्री, इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। जो हम लोग का केस स्टडी है सम ट्रिक्स, हम लोग इस कंपनी में आज से एम्प्लॉयड हो गए हैं और हम लोग इस कंपनी के क्या है? फाइनेंस ऑफिसर। फाइनेंस डोमेन में सबसे ऊपर होता है फिनेंस डायरेक्टर। फिनेंस डायरेक्टर के नीचे होता है सीनियर फिनेंस मैनेजर। बिलो सीनियर फिनेंस मैनेजर फाइनेंस मैनेजर। फिनेंस मैनेजर के नीचे फिनेंस ऑफिसर्स। ऑपरेशनल केस स्टडी में यू आर फिनेंस ऑफिसर। मैनेजमेंट केस स्टडी में यू विल बी फिनेंस मैनेजर एंड स्ट्रैटेजिक केस स्टडी में यू विल बी सीनियर फाइनेंस मैनेजर। आप ऐसे ऐसे अपना लेवल चेंज करते जाओगे, यानी कि आप इस कंपनी में फिनेंस ऑफिसर हैं और आपके ऊपर कौन है? फिनेंस मैनेजर है, सीनियर फिनेंस मैनेजर है और फिनेंस डायरेक्टर है। ये सारे लोग आपके बॉस हैं। इमीडिएट बॉस इज फिनेंस मैनेजर, बट बॉस का बॉस भी आपका बॉस है। वो लोग, दीज सीनियर लेवल पर्संस ऑलवेज टेक स्ट्रैटेजिक डिसीजंस। कौन सा बिजनेस करना है, कौन से मार्केट में जाना है, कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना है, वगैरह वगैरह। दीज डिसीजंस आर नॉट टेकन बाय फाइनेंस ऑफिसर, बट द फाइनेंस ऑफिसर हेल्प द फाइनेंस मैनेजर एंड सीनियर टीम मेंबर्स इन टेकिंग दीज डिसीजंस। जब फाइनेंस मैनेजर कुछ आपसे पूछता है, आपको उसको समझाना है, आपको उसको डिटेल देना है, आपको उसको हेल्प करना है टू टेक द राइट डिसीजन। योर जॉब इज ए सपोर्ट पर्सन। आपका काम सपोर्ट करना है। जैसे मान लीजिए मेरे यहां पर आपने सीमा रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट किया, तो मैं आपको क्या बोलता हूं, भैया लिख देना उसमें कि आई वांट टू रजिस्टर अंडर द अंडर ग्रेजुएट स्कीम और मेरा ये डॉक्यूमेंट है। तो मेरे यहां जो लोग काम करते हैं, जिनको हम फिनेंस ऑफिसर या कुछ भी आप नाम दीजिए, उनको बताया हुआ है कि भैया किसी का डॉक्यूमेंट आएगा, तुम सीमा इंस्टीट्यूट को दे देना, सीमा इंस्टीट्यूट का ग्रुप में उसको ऐड कर देना, स्टूडेंट से बात कर लेना, इंस्टीट्यूट से बात कर लेना, जिससे कि स्टूडेंट का प्रॉब्लम, स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन हो जाए। आपको भी बताया हुआ है, उनको भी बताया हुआ है, यानी कि मेरे को इन्वॉल्व होने का जरूरत नहीं है। सपोज somebody has given a letter from the college और लेटर में ये बात नहीं लिखा हुआ है कि उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट कब होएगा, बिकॉज ये जरूरी है बोनाफाइड सर्टिफिकेट में ये लिखा होना। या somebody has submitted some address ID proof but the address ID proof is not legible, understandable नहीं है, कुछ ऐसा है जो मेरे स्टाफ को लग रहा है कि, तो मेरा स्टाफ मेरे से पूछ रहा है, आपको बोलना ही नहीं पड़ेगा, वो अपने आप पूछेगा कि सर इसने डॉक्यूमेंट ऐसा दिया है, क्या ये सीमा इंस्टीट्यूट मानेगा? तो मैं उसको क्या बोलूंगा, सीमा इंस्टीट्यूट का नंबर है तुम्हारे पास, कम्युनिकेशन है नीलम के साथ, मेल कर दो, बात कर दो, कर लो। या हो सकता है कि मैं उसको बोलूंगा तुम स्टूडेंट से ये चीज और मांग लो, ये ले लो। मतलब आई एम द डिसीजन मेकर, बट ही इज हेल्पिंग मी इन टेकिंग द डिसीजंस। ही इज हेल्पिंग मी टू डू द operational thing. He is helping me to, you can see, make up some write up ready to communicate with anybody else. उसका काम है मेरी प्रॉब्लम्स को दूर करना। आप फाइनेंस ऑफिसर हो, आपको डिसीजन नहीं लेना है। इन एनी क्वेश्चन यू आर नॉट हैविंग द डिसीजन मेकिंग पावर, but to take that decision, what are the things we need to consider, how we can consider, what we should be doing, whether it will be doing like this or that, you need to help। आपको वो करना है, because your job is a finance officer, you are not the
senior level person in the organization, you are working at operational domain in the organization. आपको वैसे ऑपरेशनल इश्यूज को हैंडल करना है. मान लीजिए फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन हो रहा है, कोई पर्टिकुलर आइटम का एडजस्टमेंट कैसे होएगा, जो बॉस है वो बिजी है, आपको बोला भाई तुम बता दो ना, इसको हेल्प कर दो, आपने बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होएगा. मान लीजिए कोई डिपार्टमेंट अच्छा काम नहीं कर रहा है, कोई प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, तो भाई क्यों ठीक नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, क्या चेंज करना चाहिए, क्या इश्यू है, कैसे इसको डील करें, आपको बताना है. यू आर नॉट द डिसीजन मेकर, बट यू आर हेल्पिंग योर बॉस टू टेक द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम. बेसिकली इन सब चीजों का कोई आंसर नहीं होता है. देयर इज नो आंसर रिटन इन एनी बुक एनीवेयर. ये सब व्हाट आई शुड से, एक बिजनेस का नॉर्मल डे टू डे इश्यूज प्रॉब्लम्स है विच आर नॉट रिलेटेड विथ नंबर्स. कोई कैलकुलेशन, कैलकुलेटर का काम ही नहीं आता एग्जाम में. देयर इज नो यूज ऑफ कैलकुलेटर इन द एग्जाम. बट जो नंबर्स है, जो डेटा दिया हुआ है, क्या आपको वो समझ में आ रहा है, क्या आप उसको समझ पा रहे हैं. आपको ये सोचना है ये एक रियल बिजनेस सच्ची में स्काई कंपनी ऐसे ही तभी फील आएगा. सच्ची में आपके बॉस है, सच में बिजनेस में पैसा लगा हुआ है, सच में बिजनेस में प्रोडक्ट है, फ्री स्टाइल है, टूरिज्म है और कस्टम डिजाइंड है, एक्सेसरीज है, आपके सामने ऐसे चलते रहना चाहिए. जैसे होता है ना, इफ यू कैन फील समथिंग देन यू कैन वर्क अपॉन दैट. और आप अगर बेकाम का ये टेंशन लेते जाएंगे कि ये एग्जाम है, मैं फेल होऊंगा, पास होऊंगा, वगैरह वगैरह, और गड़बड़ होगा. इट्स नॉट विच कैन बी टॉट इन एनी बुक मैनर. जब हम लोग ट्यूसडे और थर्सडे और सैटरडे पढ़ते हैं वो अलग पढ़ाई. एसीसीए का पढ़ाई में भी केस स्टडी है, आगे आता है, आपके शुरू से ही चालू हो जा रहा है. दिस इज नॉट रिलेटेड विथ एनी बुक्स. आप सोचेंगे मेरा तो ये चीज नहीं पढ़ा हुआ है, उसके बारे में ज्ञान लीजिए और चालू हो जाइए. कोई भी चीज अगर बाई चांस टेक्निकल है जो आपको नहीं मालूम है, आप उसका रिसर्च करके उसके बारे में लिखना चालू करिए. बट आप जहां से रिसर्च कर रहे हैं, जहां से देख रहे हैं, आप वहां से कॉपी करके नहीं लिखेंगे. ये सबसे प्रॉब्लम. बिकॉज आज से 2 साल पहले चैट जीपीटी या कोई एआई मॉडल नहीं था. तो अगर हम लोग रिसर्च करते थे तो गूगल में करना पड़ता था. गूगल का रिसर्च बहुत खराब तरह का है. एक चीज के बारे में 10 पेज खोल दिया, यू जस्ट नाउ सीन आई हैव डन द गूगल सर्च कि भाई कब सबमिट करना है, देख लूंगा मैं उसमें, लेकिन टाइम लग रहा है ना. तो गूगल सर्च इज नॉट अ प्रॉपर रिसर्च टेक्निक. तो उस केस में क्या होता था कि स्टूडेंट कहीं से कॉपी नहीं कर पाता था, आंसर उसको खुद के वर्ड में लिखना पड़ता था. या हो सकता है कि दे ओपन द E1 P1 F1 मटेरियल एंड दे आर कॉपिंग फ्रॉम देयर. देन ऑल्सो एट दैट टाइम आई गेट एंग्री ऑन द स्टूडेंट्स, thought that कि when I'm saying that don't copy from anywhere, still they are following. अभी बहुत ज्यादा होने लगा है ये सब. स्टूडेंट चैट जीपीटी में जाता है, क्वेश्चन जो दिया गया उसका आंसर चैट जीपीटी से उतार उतार के लिख कर सबमिट कर देता है. बट इन द एग्जाम आर यू गोइंग टू गेट एआई मॉडल चैट जीपीटी? नो. आई एम नॉट सेइंग दैट यू डोंट डू रिसर्च. मान लीजिए मेरे को ये पॉइंट्स मालूम है, मेरे को इस पॉइंट्स का रिसर्च करना है, मेरे को इस पॉइंट्स के बारे में रिसर्च करना है, ठीक है. मैंने चैट जीपीटी में लिख दिया वर्ड, लिखा मैंने, ठीक है. चैट जीपीटी कुछ लिख कर दे रहा है. पहला बात तो ये है कि व्हेन चैट जीपीटी इज राइटिंग समथिंग और एनी अदर एआई मॉडल, चैट जीपीटी तो एक थोड़ी ना, आजकल बहुत सारे हैं सर. कोई और भी एआई मॉडल है वो कुछ लिख कर दे रहा है, अभी लिख रहा है, ये लिखेगा. आप मेरे को आंसर सबमिट करने के टाइम पे यहां से उठाए और इधर से कॉपी करके दे दिए, तो क्या आई एम बुर्बक? मेरे को क्या समझ में नहीं आ रहा है आप क्या लिख रहे हैं? आप ये कर रहे हैं, उससे क्या फायदा होगा, उससे हासिल क्या होएगा? उससे आप एग्जाम में पास नहीं हो पाएंगे, बिकॉज आपका आदत और खराब हो गया. अरे मेरा भाई, मान लीजिए कोई चीज के बारे में आपको थोड़ा बहुत ज्ञान है, आप उसको अपने और वैसे भी चैट जीपीटी इज नॉट राइटिंग अबाउट दिस स्मार्ट ट्रिक्स. आप उसको प्रॉम्प्ट ठीक से देंगे तो ही वो स्मार्ट, उसका जो सिचुएशन है उसको नहीं लिख रहा है. तो आप जो लिख कर दे रहे हैं वो ठीक नहीं है. मान लीजिए आपने चैट जीपीटी में बढ़िया से प्रॉम्प्ट दे दिया
कि मेरा ये कंपनी है, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बेचते हैं, ऐसा सिचुएशन है, सारा चीज अपने चैट जीपीटी को दे दिया, वो आंसर लिख कर दे दिया, आप यहां कॉपी पेस्ट करके लिख दिए, क्या फायदा हुआ? हाउ यू आर गोइंग टू पास द एग्जाम इफ यू डू लाइक दिस? आप चैट जीपीटी से रिसर्च करिए, आई एम नॉट स्टॉपिंग यू, बट आपको जो यहां लिखा हुआ मिला है, जो भी, मान लीजिए कोई भी चीज आपको यहां लिखा हुआ मिला, जो मिला आप उसको हू बहू कॉपी करके बस काम पूरा मत करिए। प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, डोंट कॉपी फ्रॉम कॉपी एनीथिंग फ्रॉम हियर। आप इसको पढ़िए, चैट जीपीटी ने क्या लिख कर दिया है आपको। नाउ while राइटिंग आंसर्स, अपने शब्द में ही लिखिए उसको, डोंट ओपन चैट जीपीटी अगेन। यू गॉट द आंसर, यू गॉट द राइट अप, यू नो दैट व्हाट दे आर राइटिंग, अब अपने शब्द में लिखिए ना यार, आपको मेहनत तो कम ही हो रहा है ना। बाई एआई यू आर एबल टू डू रिसर्च वेल, but write in your own language. Do some spelling mistake, grammar mistake, write wrong English, do something in your own word, right, which is not exactly correlated with chat GPT. तब आप धीरे धीरे करके यू विल बिकम अ बेस्ट पर्सन टू पास दिस एग्जाम। दूसरा, जब आप कोई भी क्वेश्चन अगर है, उसके बारे में जब आंसर लिख रहे हैं, आप उसको एकदम प्रैक्टिकल लेवल पे सोचिए। फॉरगेट अबाउट एग्जाम, फॉरगेट कि प्रैक्टिकल लाइफ में अगर ऐसा प्रॉब्लम्स आएगा, आप उसके लिए क्या करोगे, व्हाट एक्शन यू विल टेक, हाउ यू विल बी एबल टू डील विद दिस प्रॉब्लम इन प्रैक्टिकल लाइफ, वही लिखिए। दैट इज गोइंग टू गिव यू मोर मार्क्स एंड दैट इज बेटर देन द चैट जीपीटी। आप अगर ये नहीं करेंगे और शुरू से ही एआई मॉडल से छापा मार मार कर आंसर लिखेंगे, फेल होएंगे सर, कोई ऑप्शन नहीं। बिकॉज आपका आदत वही हो गया ना, सिस्टम में घुस गया है, कॉपी करना है, बस यहां से लेना है और देना है, तो एग्जाम में कहां से देंगे? एंड देन यू विल से दैट सर आई तो स्टडीड वेरी वेल। यू चेक योर सेल्फ इनसाइड, डोंट आस्क मी कि वेदर यू हैव स्टडीड प्रॉपरली इन द राइट डायरेक्शन। ये थ्योरी एग्जाम नहीं है, ये अकाउंट्स कॉस्टिंग का एग्जाम नहीं है, ये बिजनेस की स्टडी है, बिजनेस प्रॉब्लम्स है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है। आपको आज से सोचना है कि आप एक कंपनी जिसमें स्काइज बनता है वहां काम कर रहे हैं, सच में फिनेंस ऑफिसर हैं, उस कंपनी में ये आपके बॉस हैं, उस कंपनी का ये स्टाफ का स्ट्रेंथ है, उस कंपनी का ये प्रोडक्ट है, उस कंपनी के ये फिनेंशियल्स है, उस कंपनी के ये कॉम्पिटिटर है, उस कंपनी के बिजनेस में ये चैलेंजेस है। आपको आज से हर समय यही सोचना है, रात को सो रहे हैं तो भी, सुबह उठ रहे हैं तो भी, कुछ भी कर रहे हैं तो भी, हर समय आपके दिमाग में यू शुड बी हैविंग रनिंग ओनली वन थिंग, इट्स अ बिजनेस केस स्टडी, इट्स अ बिजनेस रियलिटी। जो भी डेटा उन्होंने प्री सीन से दिया है, प्री सीन, वो कोई ये नहीं है कि कहानी बनाया हुआ है, एक्चुअल फैक्ट है। एक्चुअल कंपनी मार्केट में है, उन्हीं का डेटा को वहां पर दूसरे नाम से दिया गया है। तीन चार कंपनी को उन्होंने उठाया, उनका डेटा को बनाकर एक कंपनी बनाकर दे दिया। दोज आर ऑल एक्चुअल फैक्ट्स, जस्ट दैट the hypothetical name of the director, hypothetical name of the company and all that are used, but सब actual data है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है बिकॉज हर समय हर एक केस स्टडी में एक नया इंडस्ट्री के बारे में जानना, बिजनेस मॉडल को समझना, बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, दैट इज एक्चुअली वी आर स्टडिंग मैन। आप कोई भी कोर्स करेंगे कॉमर्स में, इंडियन सीए, इंडियन सीएमए, सीमा, एसीसीए, सीएफए, एट ए वॉट एवर, भैया करना यही है, आप समझ लेना। मे बी सीमा इज एक्चुअली आस्किंग यू टू डू दैट इन द एग्जाम, बट प्रैक्टिकल लाइफ में यही करना है। सो इट्स नॉट अ क्वेश्चन आंसर और दिस थ्योरी एंड ऑल दैट, ना ये थ्योरी है, ना ये कोई न्यूमेरिकल अकाउंट्स या कॉस्टिंग का एग्जाम है। इट्स अ बिजनेस रियलिटी। आप एक एक्चुअल कंपनी है जिसमें रिसोर्सेस है, पैसा है, इंप्लॉइज है, स्टाफ है, प्रोडक्ट है, बिजनेस है। आप उसका बिजनेस को ग्रो करेंगे, बिजनेस की प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे, जो आपके बॉस लोग आपको प्रॉब्लम्स बताएंगे उनको हेल्प करेंगे सॉल्व करने में। दैट इज द जॉब ऑफ अ स्टूडेंट और दैट इज द जॉब ऑफ द फाइनेंस ऑफिसर इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको फाइनेंस ऑफिसर से फाइनेंस मैनेजर, सीनियर फाइनेंस मैनेजर, सीएफओ, सीईओ बनना है, तो आपको ये लेवल से होकर जाना पड़ेगा। यू नीड टू गो थ्रू दिस लेवल, आपको ये करना पड़ेगा। कोई थ्योरी वगैरह नहीं है।
जब आप आंसर्स लिखेंगे, हाथ जोड़कर विनती है मेरे भाई लोग, आंसर्स कहीं से कॉपी करके नहीं लिखेंगे। और इतना दुनिया में कोई बुर्बक नहीं है कि व्हेन यू आर राइटिंग, आई कैनॉट अंडरस्टैंड दैट यू हैव रिटन इन योर लैंग्वेज और यू हैव कॉपी पेस्टेड फ्रॉम समवेयर। वो सब बुर्बक को भी समझ में आ रहा है, इट्स नॉट ओनली मी। बट अगर मैं बोल रहा हूं आपने अच्छा लिखा और आपने उस तरह, उसका कोई मतलब नहीं। यू नीड टू ऑलवेज इन योर ओन। आई एम नॉट आस्किंग यू, नॉट टेलिंग यू दैट डोंट डू रिसर्च। अरे भाई करना रिसर्च यार, कौन मना किया है? इफ यू डोंट डू रिसर्च, हाउ यू अपग्रेड योर सेल्फ? रिसर्च तो करना ही है, लेकिन छापा मत मारिए। फ्रॉम नोवेयर यू कॉपी एनीथिंग। आप उसको 2 बार पढ़िए, फिर अपना लैंग्वेज में लिखिए। यू कैनॉट राइट एग्जैक्टली वॉट यू हैव डन रिसर्च और फ्रॉम अ बुक एनीवेयर, वहां से कॉपी नहीं करेंगे। सो we can say that the pre-seen material for 2 terms are same, that is November and February, but we take operational case study classes for February and August. We don't take operational case study live classes for November and May, because November, May I teach management and strategic case study so that I get a breather to perform in the class. Not for you, this is exam for me only. Your exam is in the exam hall, my exam is in the class. So I need to prepare well for the case study, then I can give my outcome in the class. So I teach operational case study live for February and August term. तो अगर आप फरवरी में एग्जाम नहीं देते हो किसी भी कारण से, या आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, तो वापस से लाइव क्लासेस विल बी डन फॉर अगस्त 2026. फॉर मे 2026 operational case study live classes will not be there. You will have 4 tasks. Each task is subdivided into A, B, A, B, C. Each task is of 45 minutes. Each task will of 45 minutes. All question in the task need to be answered in 45 minutes. Writing time allocation should be allocated based on percentage of marks. आपका 45 मिनट्स में जितना टाइम रीडिंग प्लानिंग में चला गया, बैलेंस जो टाइम है उसको, जो भी टास्क है उसको प्रोपोर्शनलिटी बांटिए, उतनी देर में आप लिखोगे। हर एक मिनट में आपको 15 से 20 वर्ड, हर एक मिनट में 1.5 लाइन का स्ट्रेंथ बनाना है। अगर आप कीबोर्ड देखकर भी टाइप करेंगे, यू कैन टाइप 1.5 लाइन इन 1 मिनट। सो टाइपिंग इज नॉट अ क्वेश्चन कि स्पीड लाना है। स्पीड किसको लाना है? वो तो देखिए बगैर 5-6 लाइन लिखता है, वो वी आर नॉट टाइपिस्ट। सिंपल नॉर्मल आप देख देख के टाइप कर सकते हैं। इफ योर फीलिंग आर देयर, then you will be easily able to type 15 to 20 words per minute, 1.5 line per minute. Paper will be of 150 marks, 80 marks pass marks. For difficult paper, because they are making based on this pre-scene, that's SmartX. इस प्री सीन के बेसिस पे उन्होंने ऑलरेडी नवंबर में एग्जाम लिया है। देयर वेयर 5-7 पेपर्स वेरिएंट्स दे हैव टेस्टेड, और अभी फरवरी में फिर से और वेरिएंट वो लोग बनाएंगे। सारे वेरिएंट्स सब अलग अलग है, सब क्वेश्चन कुछ डिफिकल्ट है, कुछ इजी है। तो फॉर दैट रीजन इंस्टीट्यूट सेज दैट if suppose one student is giving exam based on a difficult variant and another student is giving exam based on easy variant, ये तो नाइंसाफी है। तो भाई दोनों स्टूडेंट का परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन अलग तरह से होएगा। फॉर अ डिफिकल्ट वेरिएंट वॉट एवर मार्क्स यू विल स्कोर दे विल बी मल्टीप्लाइड बाई अ वेट, एंड फॉर एन easy variant whatever marks you scored they will be multiplied by a weight. For an easy variant the weight can be 90%, 95%, 85%. For a difficult variant 105%, 110%. जो मार्क्स आपने स्कोर किया दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय द वेट। कौन से पेपर में कौन सा वेट है किसी को नहीं मालूम है, दैट इज डन थ्रू द सॉफ्टवेयर। But the marks which are given to you, allotted to you, are weighted average marks. They are not the actual marks. So that weighted average marks should be 80 to pass the exam. Results will be announced after 6 weeks. जैसे मैंने अभी बोला कि आपका रिजल्ट आएगा 26 मार्च को, जो फरवरी में एग्जाम देंगे आप, इन्होंने बोल दिया है। And results will be announced and we teach OCS live for August and February term as I just now said. So we don't have a live classes for operational case study for May 2026. We will be having the live classes again for operational case study in for August 2026. This batch, the classes will be always on Sunday. Every Sunday the class will be there, 10:30 or 11.
around 10:30 type, and we will have class every Sunday without any fail. बाई चांस कुछ अगर होएगा नहीं, वैसे कुछ गड़बड़ हुआ तो कोई दिन दूसरा दिन एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा. What we are going to do today, we are going to discuss the entire pre-scene material, the basic outcome, basic questions which they are going to give in the exam, कौन सा important area है, what are the syllabus content which can be correlated with the pre-scene material. That we will do today. The second, I will give you after the class some set of questions relating to core area A. What is core area A? Core area A is costing, core area B is budgeting, core area C is what do you say, decision making, core area D is accounting. ऐसे करके they have made 6 core areas, and they say that students will be asked question based on those core areas correlating with this pre-scene material. तो हम लोग को 6 core एरिया से रिलेटेड डिस्कशन करना है. उससे डिस्कशन का तरीका क्या है? सपोज कोर एरिया ए क्वेश्चन आई विल गिव यू टुडे, आई विल गिव यू आफ्टर द क्लास. When I will give you, there are some 4 or 5 questions are there in that core area. 1 or 2 question non-exam style and 2-3 question exam style. Exam style matlab, just now I showed you there is a scenario, somebody saying something mail and all that, reference material, then the requirement AB, that is exam style. And some are just for general knowledge, because presently we need to cover the syllabus and the pre-scene together. तो आपको जनरल नॉलेज के लिए भी, थोड़ा टेक्निकलिटी के लिए कुछ नॉन एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन होंगे, कुछ एग्जाम स्टाइल. सपोज देयर आर 5 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज. हर एक वीक आपको 5-5 क्वेश्चन दिया जाएगा. आपको वो 5 क्वेश्चन का आंसर सबमिट करना है लिख करके बाय थर्सडे इवनिंग. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे. कहां से लिखना है? बोलेगा सर कुछ पढ़े ही नहीं है. मैंने तो अभी बोला रिसर्च करिए. द बेस्ट रिसर्च यू कैन डू एज पर माई एडवाइस. कोई भी चीज, मान लीजिए सपोज इन कोर एरिया ए आई एम गिविंग यू क्वेश्चन ऑन एबीसी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. यू विल से आई हैव नेवर हर्ड. नो टेंशन. आप मेरा यूट्यूब चैनल पे जाइए. मेरा यूट्यूब चैनल है आपके पास, लिख दीजिए प्रकाश सराफ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, और इसमें यहां पर डालिए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. ठीक है. हाउ एबीसी डिफर देन ट्रेडिशनल, एक वीडियो आ गया, आप ये वीडियो को देख सकते हैं. ठीक है. और भी वीडियो होएगा. मान लीजिए आपको मेरा चैनल पे नहीं मिला, भैया दूसरा होगा. दिस यू विल बी डूइंग व्हेन यू नो जीरो अबाउट दैट थिंग. आपको कुछ भी नहीं मालूम है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कौन सी चिड़िया का नाम है ये भी नहीं मालूम है, तो आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का एक वीडियो यूट्यूब पे देखिए, आइदर ऑन माई चैनल और मे बी जस्ट आप यूट्यूब, ये तो मेरा चैनल खुला हुआ है, आप यूट्यूब पे डालिए, कोई ना कोई वीडियो जरूर दे देगा. एक वीडियो देखिए अबाउट दैट कॉन्सेप्ट. मे बी दैट वीडियो इज 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स. आपने वीडियो देखा, जिस चीज के बारे में आपको कुछ भी नहीं मालूम, आपने वीडियो देखने से अपना कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया थोड़ा बहुत. इन प्लेस ऑफ बेसमेंट नाउ यू आर सेकंड और थर्ड फ्लोर. नाउ उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन मैंने दिया है वो क्वेश्चन को रीड आउट करिए. आपने क्वेश्चन रीड किया, वीडियो से को रिलेट किया, कुछ समझ में आया, कुछ नहीं आया, लगा ये लिखेंगे नहीं लिखेंगे, ऐसे समझ में नहीं आया, क्या उससे रिलेटेड प्री सीन के अंदर कुछ राइटअप है, उसको ध्यान दीजिए. अगर प्री सीन और उसके बाद भी फीलिंग नहीं आ रही, चैट जीपीटी में जाइए और चैट जीपीटी में न्यू चैट में बनाकर पूरी सिनेरियो डालिए. मेरा क्वेश्चन कॉपी कर दीजिए, अपना अंडरस्टैंडिंग कॉपी कर दीजिए. चैट जीपीटी को बोलिए मेरे को बताइए इसके लिए क्या लिखा जाए, व्हाट आई शुड सबमिट, हाउ आई विल राइट द आंसर, व्हाट आई शुड कवर. चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट प्रॉपरली देना होगा. यू नीड टू से इट इज स्मार्ट टेक सेलिंग दिस दैट, बढ़िया से बताना होगा. चैट जीपीटी ने आंसर लिखकर दिया आपको, वो आंसर परफेक्ट नहीं है, बिकॉज चैट जीपीटी डोंट हैव एंटायर रिसोर्सेस, यू हैव मोर रिसोर्सेस. आपने वो आंसर पढ़ा, बट वो आंसर अब आप इतना पहुंच गए हैं कि नाउ यू नो व्हाट टू राइट. अब आपके दिमाग में आ गया है मेरे को क्या लिखकर देना है. आप अपना वर्ड फाइल खोलिए ऐसे. इन वर्ड फाइल नेम द क्वेश्चन नंबर 1A, B, 2C, whatever, and write the answers the way you feel. Don't copy from chat GPT.
आपने यूट्यूब रिसर्च किया, आपने मेरा चैनल देखा, आपने कोई वड्डी से कोई बुक वगैरह रेफर किया, प्री सीन देखा, क्वेश्चन को फिर से पढ़ा, चैट जीपीटी से पूछा, उसके बाद तो आप तैयार होंगे। तो सपोज इफ आई एम गिविंग यू क्वेश्चंस टुडे, टेक अ टारगेट दैट मंडे ट्यूसडे यू विल बी डूइंग रिसर्च, यू विल नॉट बी राइटिंग आंसर। 5 क्वेश्चन है, पांचों के बारे में आपको मंडे ट्यूसडे 2 दिन में रिसर्च करना है। दोनों दिन कितनी देर पढ़ना है? 2-2 घंटे। मंडे 2 आवर, ट्यूसडे 2 आवर्स। मंडे 2 आवर में 5 में से 2-3 क्वेश्चन का रिसर्च कर लीजिए, और ट्यूसडे को 2-3 क्वेश्चन का रिसर्च कर लीजिए। दोनों दिन आपने अच्छा से सारे क्वेश्चंस के बारे में रिसर्च कर लिया। अब वेनेसडे थर्सडे उनका आंसर लिखिए। वेनेसडे 2 का आंसर लिख लीजिए, थर्सडे 2 का आंसर लिख लीजिए। सारे आंसर जब आपने लिख लिए, बाय थर्सडे इवनिंग आप उसका आंसर अपना फाइल मेरे को मेल कर दीजिए। सपोज अभिषेक कुमार, फाइल का नाम देंगे अभिषेक कुमार कोर एरिया ए आंसर, वर्ड फाइल। वर्ड फाइल, आंसर शुड बी रिटन इन फॉन्ट साइज 11, नॉट पीडीएफ, वर्ड फाइल। उसमें नाम दे दिए अभिषेक कुमार कोर एरिया ए आंसर्स। अभिषेक कुमार कोर एरिया ए आंसर्स लिखकर आपने मेल किया, मेल में अपना 5 आंसर मेरे को दे दिया। अब मैं आपको उसका मॉडल आंसर इंस्टीट्यूट की तरफ से जो हम लोग को मिला है मैं दे दूंगा, आप उसको गो थ्रू कर लीजिए फ्राइडे सैटरडे। मान लीजिए मॉडल आंसर्स मैंने दिया, आप नहीं पढ़ पाए, या मैंने ही आपको नहीं दिया, हम जब नेक्स्ट संडे मिलेंगे, आपने जितना भी स्टडी किया है, रिसर्च किया है, आंसर लिखा है, हम सारा चीज फिर से एज अ फ्रेश A to Z नेक्स्ट संडे को डिस्कस करेंगे। यानी कि आप ऑलरेडी बेसमेंट से फर्स्ट से सेकंड थर्ड फोर्थ ऊपर आ चुके हैं, मैं आपको टॉप फ्लोर में ले जाऊंगा कि रिलेटिंग टू दैट एरिया कैसे सोचना है, कैसे आंसर लिखना है, कैसे बिल्टअप कर सकते हैं, किसने अच्छा आंसर लिखा है, किसने खराब लिखा है, किसको क्या इंप्रूवमेंट करना है। तो हम लोग एक एरिया के बारे में पूरा वीक पढ़ाई किए, पूरा वीक, होल वीक वी स्टडीड अबाउट अ पर्टिकुलर एरिया ए। फिर वन नेक्स्ट संडे को मैं कोर एरिया बी आपको दे दूंगा। फिर आप कोर एरिया बी पे 2 दिन रिसर्च करेंगे, 2 दिन आंसर लिखेंगे, रिवीजन करेंगे, और मैं उस पर डिस्कस करूंगा। हम लोग को 5 वीक में 6 कोर एरिया कवर करना है, 5 वीक्स में 6 कोर एरिया। आई एम टारगेटिंग दैट वी फिनिश ऑफ द कोर एरियाज बाई 25th of January। मोटा मोटी 5 वीक आता है, 25th January में 6 कोर एरिया कवर करना है। 25th January से आपका एग्जाम 4 तारीख को 10 दिन बाद है। लास्ट 10 डेज में वी विल नॉट बी डूइंग एनी रिसर्च फर्दर। हो गया। अब लास्ट 10 डेज में वी आर थिंकिंग एग्जाम इज देयर। एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पेपर में ऑल आर मिक्स्ड 4 क्वेश्चंस, मैं आपका 3-4 मॉक पेपर से टेस्ट लूंगा, कुछ क्लास में टेस्ट, कुछ ऐसे। जब वो टेस्ट का आंसर आप देंगे, अब आप कोई रिसर्च नहीं करेंगे, नो गूगल, नो चैट जीपीटी, नो एनी बुक, नथिंग, आपने सब कुछ पढ़ लिया है। 25 जनवरी तक, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी तक आपने सब कुछ पढ़ लिया है, सारा एरिया डिस्कस हो गया है। अब आपको जो पेपर मिलेगा, 3 घंटे एक साथ बैठ के विदाउट एनी रिसर्च यू विल राइट द आंसर। एक साथ 3 घंटे में पूरा आंसर लिखोगे, जैसे एग्जाम में लिखना है, कम से कम 3 या 4 मॉक पेपर का। हर एक आंसर को मैं इवेल्युएट करूंगा, आपको मार्क्स दूंगा। अभी भी जो आप सबमिट करेंगे, आई विल नॉट गिव यू मार्क्स, बट आई विल इवेल्युएट। But later on, when you write the answers in 3 hours without any break, without referring anything, you will analyze yourself, your comfort level, your weak areas, and I will give you marks also. तो जब आप 3-4 मॉक पेपर का आंसर 3-3 घंटे में देने के बाद एग्जाम देने जाओगे, फेल होने की चांसेस नहीं के बराबर है। आई कैनॉट से 100% श्योरिटी ऑफ पास, बट इफ यू हैव डन दिस, दैट मीन्स 95% यू आर गोइंग टू पास दिस एग्जाम। आप बोलेंगे हम तो अभी अभी 12th का एग्जाम दिए हैं, एकदम बच्चे हैं हम अभी, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना बुद्धि भगवान सबको दिया है, बिकॉज देयर इज नो टेक्निकल स्टडी इन्वॉल्व इन दिस। प्रॉब्लम यही होता है, स्टूडेंट आंसर्स लिख रहा नहीं है, शुरू से ही वो जमा नहीं करता है, वो सबमिट नहीं कर रहा है, प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, या प्रैक्टिस कर रहा है गलत तरह से, सब चैट जीपीटी से उतार उतार के दे रहा है, उसका दिमाग खुद से ऑपरेट नहीं कर रहा है, मॉक पेपर से उनका आंसर नहीं लिखा, तो कैसे होएगा?
then surely student cannot pass. और वो स्टूडेंट को भी मालूम रहेगा, मेरे को भी मालूम रहेगा. अभी मान लीजिए सबका रिजल्ट आएगा जनवरी में, ACCA, सीमा, क्या रिजल्ट आने से पता चलेगा कि कौन पास होगा? बिलीव मी, 90% श्योरिटी के साथ मेरे को हर एक स्टूडेंट के बारे में मालूम है कौन पास होगा कौन नहीं होगा, A to Z. In all the batches, whatever I am teaching, I know who will pass, who will not pass. And according to me, even the student also know that कि वो पास होंगे कि नहीं होंगे, वो स्टूडेंट का अपना है. आप ये करिए, बस यही करना है, एग्जाम पास हो जाएगा. बट आप पहले एग्जाम सोचिए ही मत. Don't think about exam. Think about a practical business case study. There is a business, there is an industry. You are the finance officer and you need to work so that you can solve the problems, issues, capitalize on the opportunities of the organization. You need to help your board members. You need to help your boss. You need to help in the operational matters so that the strategic decision can be taken in the organization. It's not a theory or numerical or accounts or costing exam. It's a different kind of exam, which is more open-ended, practical-oriented, no bookish study, which is very interesting if you enjoy studying like this, because ultimately जिंदगी में करना यही है. That is the nature. And this way, we are going to cover all the things in our classes. Now, I want to start the pre-scene discussion, but before that, anybody has anything to ask, any question, maybe technical, non-technical, anything, जो भी आपको पूछना है पूछ लीजिए. अभिषेक, आदित्य, जयनाम, काव्या, सुभा, ऋत्वी, सृजिता, मेरा एक क्वेश्चन है। बोलिए सर. जो जो हमें केस स्टडी सबमिट करना है पहले बिफोर द एग्जाम, वो व्हेन आई कैन सी इन दी पोर्टल, वो एक 2 क्रेडिट्स करके आ रहा था उसमें ऑप्शन, तो वही है क्या? केस स्टडी सबमिट करना है, मैं समझा नहीं. मतलब कि आपने बोला था ना कि आई नीड टू सबमिट MCQ बेस्ड क्वेश्चंस लाइक असाइनमेंट ऑन ऑन, हाँ, सो दैट वो इज नॉट केस स्टडी. 1 क्वेश्चन 4 आंसर, 1 क्वेश्चन 4 आंसर, ऐसे 100 क्वेश्चन करीब होंगे अप्रोक्सीमेटली. तो उन सब का आंसर सेलेक्ट करना है और सबमिट करना है. सेलेक्ट करेंगे, मान लीजिए सी रॉन्ग है, तो सिस्टम बोलेगा रॉन्ग है, तो आपको उसको वापस से सेलेक्ट करना पड़ेगा, सी के बदले बी या ए एंड ऑल दैट. ओके। कहां पर है? दूसरे लोग देखे होंगे भाई. जयनाम, आदित्य, कैन यू टेल हिम वेयर ही विल बी एबल टू सी? लेकिन बहुत लेट हो जा रहा है अभिषेक जी, फटाफट सबमिट कर दीजिए, नहीं तो एग्जाम ही देने नहीं मिलेगा. हाँ, मेरे को आई डिडंट नो दैट, हाँ, सो अभी पता चलेगा तो आई डू इट टुडे। ठीक है. आदित्य, कैन यू टेल हिम वेयर ही विल बी एबल टू सी दैट इन द प्लेटफॉर्म? Sir, for that he will have to go to SEMA FLP. Then हाँ, वो तो इनके पास होएगा ही, वो इनको मालूम है. वहां कौन सा टैब में जाना है? SEMA FLP dashboard, there will be a study section or my class dashboard there inside dashboard. सीधा सीधा यहाँ लिखा है current skill set बोल के. अच्छा, डैशबोर्ड में तो जाएंगे, उसके अंदर करंट स्किल सेट. उसमें आपको बोला करंट स्किल सेट आप कौन सा है, तो करंट स्किल सेट में कंटिन्यू लर्निंग पर खींचेंगे तो लर्निंग पे ले जाएगा. वहाँ एवरी सिंगल टैब देखा होगा कि ABCD टैब्स वगैरह देखा होगा. एक टैब पे खींचेंगे, उस पे कंटिन्यू लर्निंग पे क्लिक करेंगे, वो क्वेश्चंस आने लगेगा. स्क्रॉल करते जाए, नेक्स्ट 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 करते जाए, बस क्वेश्चन आते जाएगा. आएगा, क्वेश्चन का सब नेक्स्ट करते जाए. हाँ, ये पता था मेरे को, आई थिंक ये मैंने स्टार्ट किया था उसमें स्टडी करना। स्टडी मत ओके करिए. ओके इफ यू वांट टू स्टडी, स्टडी लेटर. फर्स्ट ऑफ ऑल फिनिश इट सर. ओके ओके fine. डोंट कोरिलेट स्टडी एंड दैट थिंग टुगेदर, अदरवाइज फिर एग्जाम फरवरी में नहीं होएगा सर. ओके वो वाला क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आएगा ही नहीं ना. क्वेश्चन का पैटर्न तो ये है सर, ठीक है इट्स नो आई डू मल्टीपल चॉइस. तो व्हाई टू स्टडी दोस थिंग्स? ओके जस्ट एज अ फॉर्मेलिटी यू नीड टू कंप्लीट एज फास्ट एज पॉसिबल. है. ओके और वैसे कल मैं ग्रुप में मैसेज दे दूंगा आप लोग को कि एग्जैक्टली लास्ट डेट कब है. मेरे ख्याल से लास्ट डेट जनवरी फर्स्ट वीक होना चाहिए, 3-4 जनवरी एंड ऑल दैट, एज पर माई नॉलेज. बट आई एम नॉट कंफर्मिंग, आई विल कंफर्म टुमारो कि आपका असाइनमेंट का सबमिशन लास्ट डेट कब है. So for that reason, those who are not yet registered, they can also register and they can appear for February exam. So Parthi Subha, Seema Institute said that you will be able to pay in January and all that. I will talk to them tomorrow on your behalf that what best can be done for her.
so that she will be able to appear for February exam. हाँ, और अगर कोई और जन डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया आप करोगे तो मैं उनसे बात वैसे भी करूंगा. ऑल दीज थिंग्स आई विल कम्युनिकेट इन द ग्रुप सीमा OCS ग्रुप टुमारो बाय द by 2 o'clock once I will talk with them. Okay. और भाई, और अभिषेक जी, एनीबडी, एनीथिंग टू आस्क, एनी क्वेश्चन? कुछ भी पूछना है, कोई डाउट है? Because first of all we need to prepare background. So we have done the background. Now we need to start our study. The background discussion is done. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. This is the pre-scene material for November and February exam. And this is the short pre-scene analysis shared with all of you. Anybody has read this pre-scene material? कौन कौन रीड किया इसको? One time this 33 pages. अभिषेक, आदित्य, जयनाम, काव्या, सुब्बा, रुतवी, सृजिता, anybody has read this? Yes, sir. ठीक है. तो जयनाम जी एक बार एक काम करिए. You explain in 5 to 10 minutes this pre-scene material to entire class. It will help Yeah, you also and it will help others also to be ready for a discussion. बोलिए सर. सर इतना अच्छे से नहीं है, मतलब मैंने ऊपर ऊपर से पढ़ा है एकदम. तो ऊपर से कुछ तो थोड़ा बहुत तो बोल ही सकते हो यार. यस सर. हाँ, क्या बोलिए सर. सर सेंट्रिक्स ये अपने फ्री स्टाइल स्किल्स एंड और भी कुछ एरिया में काम करता है, और ये अपने जैसे कि इक्विपमेंट हो गए, हेलमेट्स वगैरह, हेलमेट्स, ग्लव्स, वो आउटसोर्स करता है, वाइट लेबलिंग करता है, वो खुद नहीं बनाता है. और ऐसे मत बोलो. You say in that way कि suppose you are in a room and 200, 500 persons are there in front of you and you need to give the summary of this case to the entire room. So what you will be speaking, sir? What you will be saying to the entire room? ओके सर. हाँ. सर मैं सोच लेता हूँ एक बार क्या बोल. अच्छा, no problem, कोई बात. Anybody else? Aditya, you can say. Can you say? Yes, sir, I have gone surfacely through the whole case pre-scene material. Our company name is Somtrix, and हाँ. Somtrix is in its industry is skiing industry. It Hmm. was the Europe and North America. There is more culture of skiing during the winters. They have more snowfalls, and they have a culture of going for skiing with families during the vacation. They go for the skiing. Then in that industry, there is a company called Somtrix, and it has been in the manufacturing process of the skiing. The skis are the tools that are attached on the legs of through which through which the skiing process happens. Then we are a manufacturing company. It means that we are a manufacturing company. We manufacture skis. Then live freestyle and tourism are two types of skiing things that we manufacture. There are different kinds of skiing whole tools or whatever they are used. Out of that, two we manufacture that are freestyle and tourism are the one we manufacture. Then our role is of an finance officer in the finance department. We are having a role of finance officer in that company. And the introduction starts as a history of the company is about 10 years ago. They started, this company was founded in 10 years ago, about 2015. Time it was founded by Ellen, Felix, and Julian. And two of them are engineering background. They have engineering background. They have studied together, and they have a background. And they met one who is a professional skier, and one of them, the Ellen, I guess, is the CEO. Who is the CEO himself does the designing works.
He's great at the designing. The one of the moat of our company or major selling point of our company is the designs are very unique, unique designs which the skiing people love. That is also one of our strengths of the company. In current situation is we operate mainly in the Europe. We sell through our websites and through the retailers to the customers. Retailers we only operate in the in the Europe, and outside Europe we don't have retailers. We sell to online, and we also sell some of the accessories like gloves, dresses, some safety instruments. But we don't manufacture them. We source them on level. We source them. We put our label on them from trusted suppliers, and we sell them on our company website only, that are not sold through retailers. They are only sold to company websites. And then about the industry, it is industry global market. About the industry, the global market, it is given about 42% of total whole market. Is the majority portion is occupied by North America. Then second comes Europe, then Asia Pacific, and our market. Our market is also, we are also situation in real land is the hypothetical company, that is a hypothetical country that is given in real land, and we are situated in real land. And our majority of our products what we made are sustainable. We are focusing toward environment sustainability, and we make through the products that are environmental sustainable. And our major raw material are wood, bamboo, and apple or ample wood. That is the major. We source bamboos mostly from China, and some are from North America we source, and the rest of the all our raw materials are sourced within real land. Okay, good. And then we have it is given our financials. That financials I haven't got much into detail. I don't got more thing from that. मोटामोटी ये समझ में आया सर मेरे. Acha, good. Good entire study done for the pre-scene, because it is difficult always to communicate than to understand yourself. अच्छा बोले आप, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक.